Srimad Bhagavatam, which is a treasure of the most precious jewels of sacred verses. श्रीमद् भागवत जो अमूल्य रत्नों जैसे श्लोकों का सागर है, Let us meditate on one in particular. आज हम उनमें से एक रत्न जैसे श्लोक पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। Savai pung sang paro dharmo yato bhaktiradhokchaje ahoitaki aprati hataya yatma suprasidati. That the supreme dharma, the very perfection and essence of all duties, all occupations, and all religions, is to render loving service to the supreme transcendent Lord. सब कार्यों का, सब धर्मों का सार और परिपूर्णता ये है कि हम उसके माध्यम से भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा कर सकते हैं। This service must be unmotivated by any selfishness or any egoism, and uninterrupted by any circumstances that may come before us in order to completely satisfy the self. आत्मा को पूर्णता संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ऐसी प्रेम पूर्ण सेवा जो है वो किसी भी स्वार्थ या अहंकार से अहंकार के हेतु से दूषित नहीं होनी चाहिए और वो किसी भी परिस्थितियों के कारण उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। In this verse is a definition of love. इस श्लोक में प्रेम की व्याख्या की गई है। Love is a complete surrender of the heart, of the body, of the mind, of the words, samsadir haritoshanam, for the pleasure of the beloved. प्रेम का अर्थ यह है कि हृदय, शरीर, मन और आत्मा के साथ भगवान के लिए शरणागति स्वीकार करना। The eternal, supreme beloved of all living beings is Bhagavan, the supreme personality of Godhead, Krishna. परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ये जीव के अंतिम लक्ष्य है। In the world, in many religious circles, people approach God as an order supplier. Please give me this. अनेक धार्मिक वातावरण में, अनेक धार्मिक संस्थाओं में भगवान को ये हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, हमारी ऑर्डर्स को पूर्ण करने वाले, हमारी आज्ञाओं को पूर्ण करने वाले व्यक्ति मानते हैं। Srimad Bhagavatam, very beginning, dismisses this attitude. श्रीमद् भागवतम शुरू से ही ऐसे तत्वों को अपने अंदर से दूर कर देता है। Dharma projita kaitavata parama niramatsananam sata. It teaches, yes, it is religion to approach the Lord for our own needs. But Srimad Bhagavatam is not interested in that level. Srimad Bhagavatam is teaching us through beautiful histories and examples and through philosophical explanations how to offer our hearts with the question, my Lord, how can I serve you? How can I please you? श्रीमद् भागवतम केवल सामान्य रूप से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम सुंदर सुंदर कहानियों के माध्यम से और
सिद्धांतों के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहता है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा उत्तम प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इन सेवा के माध्यम से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। Little 5-year-old Dhruv. He was hurt so painfully by his stepmother and father. 5 साल के छोटे से बालक ध्रुव अपने सौतेली माँ के माध्यम से उनके द्वारा बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनके हृदय में दर्द, उनके अपमान हुआ। He was taught by Narada Muni when he was in the forest. Actually, he went to the forest because he was determined to approach God to get a bigger and better kingdom than his father. ध्रुव जी वन में गए क्योंकि वो भगवान से बहुत ही तीव्रता से मिलना चाहते थे ताकि उनको अपने पिता से भी श्रेष्ठ अढ़ल स्थान प्राप्त हो, और उस वन में नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी। Narada taught him the yoga process, नारद मुनि ने उनको योग का तरीका सिखाया, which was focused around the chanting of a mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. और ये पद्धति ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के ऊपर आधारित थी। He was performing yoga asanas, he was doing tapasya, but all the while he was chanting this mantra and meditating on the form of the Lord in his heart. तो योगासन करते हुए निरंतर ध्रुव जी इस मंत्र का हृदय में चिंतन और मनन करते थे। And the Lord gave him direct personal darshan. और भगवान ने बड़ी दया से उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। Lord Narayan offered him any benediction. भगवान नारायण ने उनको किसी भी वरदान को मांगने के लिए कहा। Dhruva said, I don't want anything but to love you and to always remember you and to serve you. लेकिन नारद मुनि ने कहा कि मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए सिवाय एक वरदान के कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, आपको संतुष्ट करता रहूं। As the servant of your servants. और किस तरह से आपके दासों के दास बनकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। Narayan said, but I can give you so many things. You came to me for a kingdom. I will give you a kingdom greater than your father's. भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, आपने तो राज्य, श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, वो राज्य भी आपको मैं दे सकता हूं। Dhruva Maharaj felt so humbled and ashamed that he came asking for something from God. ध्रुव महाराज को बहुत ही संकोच हुआ, लज्जा हुई और इस विचार से कि मैं क्यों इस तरह की मन में इच्छा रखकर भगवान के पास आया था। He said, no, my Lord, I don't want that. उन्होंने कहा नहीं भगवान, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। I came here looking for the broken pieces of glass of material prosperity, fame and power. मैं आपके पास भौतिक जो उन्नति है, शक्ति, नाम, प्रतिष्ठा, इन जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े की प्राप्ति करने के लिए मैं आपके पास आया था। But I received the most precious jewel of your darshan. लेकिन मुझे आपके दर्शन के रूप में बहुत ही मूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। How may I serve you? मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? As Srimad Bhagavatam progresses through the cantos, there are many such stories. Little Prahlad. जिस तरह से हम श्रीमद् भागवत के पठन में आगे बढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की। He was a god brother of Dhruva. वो प्रहलाद जी ध्रुव जी के गुरु भाई थे। They lived different places, different times, but they had the same guru, Narada Muni. अलग समय पे अलग स्थितियों में अलग जगह पर वो रहते थे, लेकिन फिर भी
नारद मुनि ही उनके गुरु थे, इसलिए वो गुरु भाई थे। And his father Hiranyakashipu, he offered Prahlad the entire kingdom of the universe if he just renounced Krishna. हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपना पूरा साम्राज्य प्रदान करना चाहा, केवल एक शर्त पर कि वो श्री कृष्ण भगवान की सेवा को छोड़ दे। And if he did not, he would be tortured and killed. और अगर वो कृष्ण का त्याग नहीं करते हैं तो उनको यातना दी जाएगी और उनको मारा जाएगा। What was Prahlad's response to his father? इन अपने पिताजी के वाक्यों को प्रहलाद ने क्या प्रतिसाद दिया? Naisham matisthavarurukramangring, that my dear father, with all respect, unless you smear your body completely with the dust of the feet of those devotees who love Krishna and have no material aspirations, you will never achieve Krishna, the only goal of life. इसके प्रतिसाद में प्रहलाद ने कहा कि जब तक आप उन भक्तों की चरणों की रज से अपना शरीर को नहीं ढकते हैं, स्नान नहीं करते उस रज में, जो भक्त जो भगवान के निष्प्रिय प्रेम में और सेवा में मग्न हैं, तब तक आप जीवन का जो सर्वोच्च प्राप्ति है श्री कृष्ण, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। He wasn't defying his father. वो अपने पिता के प्रति विद्रोह नहीं कर रहे थे। It's kind of tradition in the West that people defy their parents. पश्चिम जगत में ऐसा एक तरीका है, ऐसा एक लोगों को आदत है कि वो अपने माता पिताओं को, उनके आदेश को विद्रोह करते हैं। Prahlad was only trying to enlighten out of pure love for his father. अपने पिता के प्रति शुद्ध प्रेम होने के कारण वो अपने पिता को थोड़ा बहुत ज्ञान देना चाहते थे। But Hiranyakashipu could not understand. लेकिन हिरण्यकशिपु के समझ में कुछ भी नहीं आया। In so many ways he tried to murder Prahlad. विविध प्रकार से उसने अपने पुत्र का वध करना चाहा। Prahlad was not attached to life or death in this world. He was just happy remembering Krishna. लेकिन प्रहलाद को इन सब चीजों से बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो हमेशा सदैव भगवान के चिंतन में मग्न रहा करते थे। Ultimately, Krishna came as Narasimhadev and performed a gastrointestinal surgery upon his father. और अंतिम क्षण में फिर कृष्ण नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट का ऑपरेशन किया। Narasimha is the Ishtadev for all the surgeons at Bhaktivedanta Hospital. नरसिंह भगवान ये भक्तिवेदांत अस्पताल के जितने भी शल्य विशारद है, सर्जन हैं, उनके इष्ट देव हैं। उनका फोटोग्राफ ऑल्सो इज देयर इन द ऑपरेशन थिएटर। In every operation theater there is his Adi surgery, his original surgery. और हर एक ऑपरेशन थिएटर में हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन करते हुए आदि शल्य क्रिया करते हुए उनका चित्रपट लगाया गया है। And sometimes patients, they're in the anesthesia and they look up and they see Narasimhadev. और कभी कभी मरीज जो ऑपरेशन टेबल पे रहते हैं ऑपरेशन करने के समय, तो देखते हैं ऊपर तो हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ते हुए नरसिंह भगवान नजर आते हैं। Sometimes they're Hindus, sometimes they're Christians, sometimes they're Muslims, sometimes they're Jains, sometimes they're Sikhs, sometimes they're agnostics, sometimes they're atheists. तो कभी उनमें से कोई हिंदू होता है, मुसलमान होता है, ईसाई होता है, सिख होता है, बुद्धिस्ट होता है, जैन होता है, तो कभी भगवान को मानने वाले होते हैं, कभी भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं। हर प्रकार के लोग उसमें होते हैं। And they look up and they see Narasimhadev. और वो ऊपर देखते हैं तो उनको नरसिंह भगवान का दर्शन होता है। And before they could ask, what is that? और वो पूछते हैं कि ये कौन है और क्या है। The anesthesia takes effect and they are unconscious. और ये पूछने के पहले ही
जो उनकी दवाई देकर उनका जो शुद्धि उनको निकाल देते हैं, उनको बेहोश कर देते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं. Sounds like electrical murdungus. लगता है कि इलेक्ट्रिकल मृदंग हो. सब लोग मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज. And after they fall asleep on the operating table, then Narasimhadev's agents perform the surgery on his behalf. और जब मरीज को दवा देकर उनको बेहोश किया जाता है, तो नरसिंह भगवान के प्रतिनिधि जो सर्जन है वो अपना ऑपरेशन चालू कर देते हैं. Narasimhadev, Bhagavan Sri Narayan asks Prahlad, I will give you any benediction. तो नरसिंह भगवान जो परम भगवान है, उन्होंने प्रहलाद से कहा कि मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूं, आप मांगिए. Prahlad said, if I ask anything from you, then I'm not a devotee, I'm just a businessman. प्रहलाद जी ने कहा कि अगर मैं आप से कुछ भी वर मांगता हूं तो मैं भक्त नहीं होता, मैं एक व्यापारी होता हूं. I'm giving you, you give me. आप मुझे दे रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे दीजिए. Said, I have given my heart, my life for you unconditionally out of love. I want nothing in return. किसी भी शर्त के बिना मैंने आपका मेरा हृदय, मन, आत्मा आपके सेवा में समर्पित कर दिया है. Let me forever remember you and serve you with love. सदैव मुझे आपका स्मरण करने दीजिए और प्रेम पूर्ण भावना से आपकी सेवा करने दीजिए. But if it pleases you for me to ask something, give my father liberation. लेकिन अगर मेरे कुछ मांगने से आपको संतुष्टि होती है तो कृपा करके मैं एक चीज मांगता हूं कि मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए. Narasimhadev said, I've already given him liberation. और Because I knew your heart. नरसिंह भगवान ने कहा कि पहले से ही मैंने आपको आपके पिताजी को मुक्ति दे दी है, क्योंकि मैं आपके हृदय की बात को जानता था. In fact, I declare as a promise that anyone who surrenders to me with love, I will give 21 generations, past and future, of all his relatives liberation. मैंने ये भगवान कहते हैं कि मैंने ये पहले से घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति मेरे प्रति अपने आप को सेवा में, भक्ति में अर्पण कर देता है, उसके भविष्य के और वर्तमान के और इतिहास के 21 पीढ़ियों का मैं उद्धार करता हूं, उनको मुक्ति दे देता हूं. Prahlad wanted everyone else's liberation, but for himself, he said, if you really want to give me a benediction, as long as anyone is suffering in this world due to forgetfulness of you, let me be here to help them. प्रहलाद महाराज ने भगवान से एक वरदान मांगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको भूलने से, आपके विस्मृति के कारण अगर दुखी है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौका दीजिए. And now we will go forward to the 9th canto. और अब हम इस कथा से आगे 9वें स्कंद की कथा पर चलते हैं. Ambarish. अम्बरीश महाराज. He was a householder with a family. अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, उनका परिवार था. And he was a king. और वो राजा भी थे. He was fasting for so many days. वो बहुत दिन तक उपवास कर रहे थे. For the welfare of all of his citizens. पूरे नागरिकों के कल्याण के लिए वो व्रत कर रहे थे. In the service of the Lord. भगवान की सेवा में, उनकी संतुष्टि के लिए. When you water the root of the tree, it extends to every part of the tree. जब हम किसी पेड़ के, किसी वृक्ष के मूल को जल देते हैं, तो वो हर एक शाखा और पत्ताओं को वो जल पहुंच जाता है. He understood that by pleasing Krishna, he would be empowered to do the greatest welfare for all of his citizens. वो जानते थे कि अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो हम समाज के लिए सर्वोच्च कल्याण कर सकते हैं. And Durvasa, great Muni, came with 60,000 followers. और दुर्वासा मुनि जो सबसे महान मुनि थे, वो 60,000 अनुयायियों को लेकर वहां प्रकट हो गए. And Ambarish, he offered him
some prasad, but Durvas Muni said, I must go bathe first. अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को कुछ प्रसाद अर्पण किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले स्नान करूंगा, बाद में प्रसाद पाऊंगा। And the time for him to break his fast had come. और अम्बरीश महाराज का जो व्रत पारण करने का समय आ चुका था। If he didn't do it on time, then all of that service for his whole kingdom would be nullified. और अगर वो उस समय पर पारण व्रत का नहीं करते हैं, तो जो उन्होंने इतने लंबे समय तक व्रत किया था, उसका लाभ उनकी प्रजा के लिए नहीं प्राप्त हो सकता था। So he took a drop of Charanamrit, sacred water. तो उस व्रत को पारण करने के लिए उन्होंने एक कण, एक बूंद चरणामृत का अपने हाथ पर ग्रहण किया। Durvas was such a great yogi that even while he was in the river Yamuna at Madhuban, he could understand Ambarish drank a drop of Charanamrit. और दुर्वासा मुनि ऐसे सिद्ध योगी थे कि नदी में स्नान करते हुए भी, वहां पर न होते हुए भी उनको ये पता चला कि अम्बरीश महाराज ने चरणामृत ग्रहण किया है। He became so angry. और दुर्वासा मुनि इतने क्रोधित हो गए, He insulted Ambarish with the worst possible words. बहुत ही कठोर शब्दों से उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपमान किया। Then he created a monstrous asura to kill Ambarish. और एक भयंकर राक्षस को निर्माण किया अम्बरीश महाराज को वध करने के लिए। Ambarish did not try to defend himself. लेकिन अम्बरीश महाराज ने अपनी सुरक्षा में कोई प्रयास नहीं किया। He folded his hands with great humility in total fearlessness. Krishna, I'm yours. बड़े निर्भय होकर, नम्र होकर, हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान से अपने आप को समर्पित किया और कहा कि मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। He wouldn't even ask Krishna to protect him. उन्होंने भगवान से ये भी नहीं याचना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए। Krishna, I'm yours. कृष्ण, मैं आपका हूँ। Because he surrendered with such love, Krishna sent his Sudarshan Chakra. और इस प्रेम पूर्ण भावना से जो समर्पित हुए, इसलिए अम्बरीश महाराज के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। It liberated the fiery person. और वो जो राक्षस थे भयंकर, उनका वध कर दिया। And then it went to Durvas. और वो दुर्वास के पीछे लगे, And सुदर्शन Durvas चक्र, ran away. और दुर्वासा भागने लगे। But the chakra was very fast. दुर्वास बहुत तेज भाग रहे थे, चक्र बहुत तेज उनके पीछे लगे थे। Durvas ran faster and faster. और दुर्वासा मुनि और बहुत तेजी से भागने लगे। And he was a yogi, so he could run really fast. और वो योगी थे, इसलिए वो बहुत तेज गति से भाग सकते The सकते chakra थे। was still behind him. So he took off. और चक्र फिर उनके पीछे भी चलने लगे और दुर्वासा मुनि ने फिर आकाश में छलांग लगाई। He went into the sky and began to fly. और इस प्रकार से दुर्वासा मुनि आकाश में प्रवेश करने लगे। And with his yogic powers, he could fly so fast. अपने योग बल से वो बहुत ही तीव्र गति से भाग रहे थे। We think our airplanes are fast. हम लोग को लगता है कि हमारे जो हवाई जहाज हैं वो बहुत तेज जाते हैं। From Delhi to Mumbai, it's दिल्ली से about मुंबई 1 hour and 35 minutes. 1 घंटा और 35 मिनट लगते हैं, Very fast. बहुत तेज जाते हैं। But Durvas, he didn't even have an engine. और लेकिन दुर्वास जब हवा में उड़ रहे थे तो उनके पास इंजन भी नहीं था, He was just flying. केवल उड़ रहे थे ऐसे ही। And he was going in that amount of time, not to Mumbai, he was going to other planets. और जितना समय मुंबई पहुंचने को लगता है, उतने समय में वो अन्य लोकों में पहुंच रहे थे, उतनी गति से To Swargaloka. स्वर्ग लोक तक पहुंच गए वो। Indra, help me. Indra said, no, Narayan's chakra, I cannot help you. इंद्र से उन्होंने याचना की, मुझे मदद कीजिए, रक्षा कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नारायण के चक्र के सामने मैं आपका कुछ नहीं मदद कर सकता। He went to Brahmaloka. ब्रह्मलोक चले गए। Brahma said, the chakra of Narayan, I cannot help you. तो ब्रह्मा जी ने कहा नारायण जी के चक्र के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। He went to Maheshloka, the abode of Shiva. तो भगवान शिव के महेश लोक में चले गए वो। Help me. मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। The chakra of Narayan, I cannot help you. भगवान Only Narayan can भगवान help. नारायण का चक्र जो है वो
उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल नारायण भगवान आपको मदद कर सकते He हैं। went to Vaikuntha. तो वैकुंठ में चले गए वो। What airplane could do these things? कौन सा हवाई जहाज वैकुंठ पहुंच सकता है? And he didn't even have to fasten a safety belt or anything. उनको सुरक्षा पेटी भी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। This is the power of yoga. ये योग की शक्ति है। But what is the perfection of yoga? लेकिन योग की परिपूर्णता सिद्धि क्या है? That we understand in this story. तो वो जो योग की परिपूर्णता है उसके बारे में हम इस कहानी में सीखते हैं। He performed his dandavats at the feet of Lord Narayan in Vaikuntha. वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण के सामने दुर्वासा मुनि ने दंडवत प्रणाम किया And begged, please save me. और ये भिक्षा मांगी कि कृपा करके मेरी सेवा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। Narayan said, I cannot save you. और नारायण भगवान ने भी कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। But it's your chakra. उन्होंने कहा कि ये तो आपका चक्र है जो मुझे पीछे लगा है। Narayan said that Ambarish is a pure devotee. नारायण भगवान ने कहा कि अम्बरीश महाराज मेरे शुद्ध भक्त हैं। He's a humble householder with family, तो बहुत ही नम्र गृहस्थ परिवार के साथ में हैं, but he surrendered his life to me. लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मेरी शरणागति स्वीकार कर ली है। And because he has given his heart to me, I have given my heart to him. और क्योंकि उन्होंने मेरा अपना हृदय मुझे अर्पण किया है, मैंने भी मेरा हृदय उनको अर्पण किया है। And therefore, out of his love, I am forever within his heart. इसलिए प्रेम के कारण मैं हमेशा उनके हृदय में निवास करता हूँ। When you try to harm a devotee, you try to harm me because I am in the heart of that devotee. और जब भी आप मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाते हो तो प्रत्यक्ष मुझे कष्ट पहुंचाते हो, क्योंकि उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। Because of his love and my love for him, I am powerless to help you. इसलिए Only he can protect you. क्योंकि मैं उनको चाहता हूँ और वो जो चाहते हैं प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, वही केवल आपकी मदद कर सकते हैं। So Ambarish flew all the way back from Vaikuntha. He didn't stop in Mahesh Loka or Brahma Loka or Swarga Loka. He came back to here, Madhuban, तो वहां से just close by. अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि वैकुंठ से महेश लोक ब्रह्मलोक में ना रुकते हुए सीधे यहाँ पहुंचे जो ब्रज में मधुवन नाम की जगह है। All this traveling took about a year. इस पूरी सफर करने में उनको 1 साल लगा। Ambarish did not eat the whole year पूरे 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया, because the whole time he was praying for the well-being of Durvas and waiting to give him prasad. पूरे 1 साल के लिए अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनको प्रसाद देने के लिए इंतजार कर रहे थे। Durvas fell at Ambarish's feet and prayed, please, 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 from my heart, forgive me. दुर्वासा मुनि ने बड़े ही क्षमाशील भावना से कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, इस तरह से प्रार्थना किया। And Ambarish was so humble, so genuine. और अम्बरीश महाराज इतने सज्जन थे और इतने नम्र थे। He said, there's nothing to forgive you for. Please forgive me. Because of me you haven't eaten in so long. Now please take prasad. आपके लिए मेरे पास क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इतने समय तक भोजन नहीं किया है, कृपा करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। But because Durvas genuinely humbled himself before Ambarish, the chakra went away. Ambarish was praying, Krishna, O chakra, please do not harm him, forgive him, give him all blessings. क्योंकि दुर्वासा मुनि ने हृदय से मनपूर्वक क्षमा याचना की अम्बरीश महाराज की, इसलिए चक्र वापस चला गया। क्योंकि पूरे साल तक अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर चक्र से प्रार्थना कर रहे थे कि आप दुर्वासा मुनि को कोई कष्ट नहीं पहुंचाइए। Just try to see the contrast. आप देख सकते हैं कि ये कैसा विरोधाभास है। Ambarish only wanted to love and serve Durvasa, but he drank a drop of Charanamrit as a ritual, and Durvasa tried to kill him. अम्बरीश महाराज हृदय से दुर्वासा मुनि की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहते थे, लेकिन जन कल्याण के लिए उन्होंने एक बूंद चरणामृत लिया, तो उसके लिए दुर्वासा मुनि ने उनका वध करना चाहा।
Durvas Muni insulted Ambarish and tried to murder him, and Ambarish was lovingly praying for the well-being of Durvasa. तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का Ambarish did not pray to Krishna, save me. He prayed for Krishna to save the person who was trying to kill him. अम्बरीश महाराज ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन जो व्यक्ति उनका वध करना चाहते थे उनकी रक्षा करने की प्रार्थना वो कर रहे थे। This is the 9th canto. ये 9वां स्कंद है श्रीमद् भागवत का। And later on in the 9th canto we have the Leela of Sri Ramchandra. और आगे जाकर 9वें स्कंद में हमें भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन मिलता है। Hanuman. हनुमान जी की कथा आती है। What was the standard of his devotion? उनके भक्ति का दर्जा कितना श्रेष्ठ था। He jumped across the Indian Ocean. वो भारतीय हिंदी महासागर को लांघना चाहते थे। He found Sita. उन्होंने सीता को प्राप्त किया। He chanted the beautiful pastimes of Ram and gave Sita Ram's ring to pacify her heart. सीता जी के विश्वास के लिए उन्होंने प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का गायन किया और रामचंद्र भगवान की जो अंगूठी थी वो सीता जी को अर्पण किया। That was his service. ये उनकी सेवा थी। He wanted to do more. उनको और सेवा करने की इच्छा So he थी। broke the Ashok garden उन्होंने अशोक वाटिका का विध्वंस किया just so that he would be attacked. इसी उद्देश्य से कि वो उन पर राक्षसों के तरफ से आक्रमण हो। And then he defeated so many thousands of soldiers and so many great generals and even the son of Ravana. और उन्होंने इस प्रकार से कई राक्षसों को परास्त कर दिया, कई सेना नायकों को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि रावण के पुत्र का भी वध कर दिया। He allowed himself to be arrested. और आखिर में वो अपने आप को उन्होंने बंदी बनाने के लिए राजी हो गए, वो बंदी हो गए, Tied up and उनको बांधा गया brought before Ravana. और रावण के सामने लाया गया। Ravana, Indrajit, all these massive, powerful, mystic Rakshasas. और रावण He इंद्रजित voluntarily allowed himself to be tied up and brought before them. रावण इंद्रजित जैसे महाबलशाली भयंकर राक्षसों के सामने लाने के लिए स्वयं रावण हनुमान जी ने अपने आप को बंदी बना लिया। He wasn't praying for protection, he was praying for seva. वो अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो सेवा मांगने की प्रार्थना कर रहे थे। And he's tied up and they're all with their weapons and there's millions of them. वो बंदी बनाकर वहां पर लाए गए थे और बाकी सारे राक्षस भयंकर शस्त्र को उठाकर वहां पर खड़े थे। And right in front of everybody, he insulted Ravana. और सबके सामने उन्होंने रावण का अपराध कर दिया, He called रावण him का अपमान कर दिया। He called him a coward. उन्होंने रावण को क्या कहते हैं कावड़ को, कायर कहा, कायर पुकारा। That's the worst insult for a Kshatriya. एक क्षत्रिय के लिए Rakshasa कायर warrior. कह के पुकारना सबसे बड़ा अपराध हो सकता है। Said, why didn't you face Ram like a real warrior and fight for Sita? Why you disguised yourself, sent Ram away and kidnapped her like a jackal steals the food of a lion? क्यों आपने एक वीर योद्धा की तरह रामचंद्र भगवान का सामना नहीं किया? क्यों एक भिक्षुक बनकर, साधु बनकर आपने सीता का हरण किया, जैसे कोई भेड़िया शेर का शिकार चोरी करके लेके जाता है? Give Sita back and Ram will be there to protect you. If you do not give Sita back, you will be destroyed. सीता को वापस कर दीजिए, तब राम की तरफ से आपको कोई भी कष्ट नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपको सीता को नहीं देना है वापस, तो राम आपका वध कर देंगे And your entire race will be exterminated. और इस तरह से पूरा राक्षस वंश का इसमें नाश हो जाएगा। This monkey tied up is saying all this. एक डोरी से बंधा हुआ बंदिस्त बंदर जो है ये सारे गहन वाक्यों को बता रहा है। Ravana was so angry. रावण इन वाक्यों को सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। His eyes, 20 eyes.
were burning with wrath. उनकी 20 आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी. His limbs, 20 arms were trembling. उनके 20 हाथ थर-थर कांप रहे थे. And he screamed out, "Kill him! Kill that monkey!" और बहुत जोर से उन्होंने गर्जना की, इस बंदर को मार डालो. And all the soldiers with their weapons were coming toward Hanuman to kill him. और सारे योद्धा, राक्षस योद्धा अपने शस्त्रों को परखते हुए हनुमान जी की ओर भागने लगे. Hanuman was tied up, just standing. और बंदिस्त अवस्था में बड़ी शांति से हनुमान जी खड़े थे. Vibhishan, Ravana's younger brother, he said, "Ravana, we cannot kill him. He's a messenger. According to the Kshatriya codes, you cannot kill a messenger. You can punish, but you cannot kill." तो विभीषण जी ने बीच में बात की कि हे रावण, आप इसे दूत का वध नहीं कर सकते. आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आपको वध नहीं कर सकते. Ravana, he wanted to do worse than kill him. He wanted to torture him to death. लेकिन उससे भी भयंकर दंड देने की रावण की इच्छा थी. बहुत यातना देकर, पीड़ा देकर उनको हनुमान जी को मारने की इच्छा थी. Monkeys are proud of their tails. बंदरों को अपनी पूंछ पर बड़ा गर्व होता है. Light his tail on fire. उसकी पूंछ को आग लगा दो. They didn't just light it on fire. और उनकी पूंछ को आग लगाई गई. They got all sorts of cloth, large quantity of cloth, and wrapped it around his tail. उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में कपड़ा उनसे उनके पूंछ को बांध दिया. Then they soaked the cloth thoroughly in flammable oil. और वो सारा कपड़ा जो था, जो पूंछ को बांधा था, उन्होंने प्रज्वलित करने वाले तेल में उसको डुबा दिया. And then with a giant torch, they lit it. और बड़ी ज्वाला लेकर उसको पूंछ को आग लगा दिया. It wasn't like a stick of incense. It was massive flames were pouring out of his tail. छोटी सी अगरबत्ती जैसा नहीं था. जैसे ही वो अग्नि का स्पर्श हुआ तो भयंकर तेज ज्वाला उसमें धधकने लगी. Hanuman was still tied up, हनुमान जी फिर भी बंदिस्त अवस्था में थे. but he expanded his body. लेकिन अपने शरीर को उन्होंने विस्तारित कर दिया. And then he made his body smaller. और फिर उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर दिया. And the ropes went big, and then he went small, and he just jumped out of the ropes. तो जिन डोरियों से बंधे गए थे वो बाहर चले गए, वो छोटे हो गए, फिर वो उसमें से उड़ के आकाश में गए. And before his next jump, he told Ravana, "Give back Sita, or you will be destroyed." और अगली छलांग लगाने के पहले हनुमान जी ने फिर चेतावनी दी, रावण, सीता को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा वध हो जाएगा. Ram is the supreme personality of Godhead. प्रभु रामचंद्र परम भगवान है. And he jumped to the top of a roof और फिर वो महलों के छत पर कूदने लगे. and touched his tail to the roof. और अपनी पूंछ का स्पर्श, उन्होंने जलते हुए पूंछ का स्पर्श महलों को किया. The whole building went on fire. उस तरह से सारा महल आग की ज्वालाओं में भर गया. And he jumped to the next building, और अगले महल में वो कूदे, touched his tail. अपने पूंछ का स्पर्श किया. The whole building went on fire. फिर दूसरा महल भी आग में Then went to the भस्मसात हो next गया. building. और अगली महल में next गए building, and और the अगली next बिल्डिंग में गए. हर जगह पर उन्होंने Hundreds of buildings were on fire. सैकड़ों इमारतों को उन्होंने आग लगा दी. And they were big buildings. वो बड़े-बड़े प्रासाद थे. There was massive flames everywhere. बहुत तेज ज्वालाएं सब जगह धधक रही थी. The whole of Sri Lanka was in total chaos. पूरी लंका जो है वो भयंकर अवस्था में जा चुकी थी. Ladies were screaming, running out of their houses, and the अपने- rakshasas are sleeping and waking up, coming out, and अपने everybody. घरों में से राक्षस लोग बाहर आ रहे थे, चिल्ला रहे थे. उनकी माताएं, उनकी कन्याएं, उनकी स्त्रियां आक्रोश कर रही थी.
other Rakshasas with their weapons were trying to find Hanuman to stop him, but he was just going from building to building, jumping, jumping, jumping. और बाकी सारे राक्षस अपने शस्त्रों को लेकर हनुमान जी को ढूंढने का और उनको दंड देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारे प्रासाद और महल आग की ज्वाला में धधक रहे थे। The whole time he felt his tail very cool and refreshing experience. लेकिन उन सारे समय, पूरे समय तक हनुमान जी को अग्नि से बिल्कुल भी उष्णता की बाधा नहीं हुई। उनको लग रहा था कि बहुत ठंडा अनुभव हो रहा था। But fire is hot. अग्नि उष्ण होता है And this fire was burning for a long time. और ये बहुत देर तक अग्नि जल रही थी And he felt it very cool, और फिर भी उनको बहुत ठंडा अनुभव हुआ। kind of like sandalwood, chandan with camphor and saffron. और जिस तरह से चंदन और कर्पूर और अगुरु केसर का अनुभव होता है, वैसे उनको अपने पूंछ पे अनुभव हो रहा था। He immediately understood why. और वो ये ऐसे क्यों हो रहा था, इसका कारण हनुमान जी को तुरंत ही पता चला। Because in the Ashokvan, Vibhishan's wife told Sita what Hanuman was doing. क्योंकि अशोक वाटिका में जहाँ सीता को रखा गया था, वहाँ पर विभीषण की पत्नी ने हनुमान जी के साथ क्या घटना हो रही है इसका वर्णन किया। Sita prayed to Agni, the god of fire, सीता देवी ने अग्नि देवता से प्रार्थना की to make his fire burn the city but feel refreshingly cool and sweet to Hanuman. ये प्रार्थना की कि आपकी अग्नि के ज्वाला के द्वारा सारे महल जलने दीजिए, लेकिन हनुमान जी के पूंछ में केवल ठंडक का अनुभव हो। He didn't pray for anything for himself, but because of his unmotivated, selfless service, Sita was praying for him. हनुमान जी ने अपनी तरफ से कोई प्रार्थना नहीं व्यक्त की, लेकिन क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा में थे, सीता जी ने उनके लिए प्रार्थना की। And then he jumped up on top of a mountain. और वो फिर बड़े पहाड़ के शिखर पर कूद पड़े। Those monkeys? No, some men. And he made his voice very loud. और अपने आवाज को बड़ी तेज करके उन्होंने पुकारा। He didn't need microphone or sound system. उनके लिए माइक्रोफोन, ध्वनि क्षेपक की जरूरत नहीं थी। He spoke so loudly. वो इतने तेजी से बोले। He said, Ravana, and not only Ravana, but everybody heard. Every Rakshasa, man, woman, child, everyone. उन्होंने The voice of Hanuman was booming. इतने जोर से पुकारा और कहा, तो केवल रावण ने नहीं, लेकिन राज्य के जितने राक्षस थे, स्त्रियां थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, सबने उनकी आवाज सुनी। He said, I am just the insignificant servant of Ram, and look at what I have done to your kingdom. मैं प्रभु रामचंद्र का दासों का एक तुच्छ दास हूं, और देखो मैंने रावण की क्या और लंका की क्या स्थिति बना दी है। Give back Sita. सीता जी को वापस कर दो। Other words, Ram will come himself. नहीं तो स्वयं प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आएंगे। With millions of monkeys more powerful than me. करोड़ों बंदर वानर जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, उनको लेकर वो यहाँ पर आक्रमण करेंगे। Then he jumped in the sea and put his tail out. और उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई, अपने पूंछ को बुझा दिया, And then jumped back. और फिर छलांग लगाकर वो भारतवर्ष में आए। Then with meeting his colleagues, the Vanaras, they all went back to Kishkinda Kshetra, and he met Ram. और अपने वानर सहायकों से मिलते हुए वो फिर किष्किंधा में प्रभु रामचंद्र से मिलने गए। He gave Ram Sita's jewel. और सीता जी का जो रत्न था वो उन्होंने प्रभु रामचंद्र को दिया। He gave Ram Sita's message of love. और सीता जी का प्रेम संदेश उन्होंने प्रभु रामचंद्र तक पहुंचाया। And he also told Ram all the strategic military arrangements of Sri Lanka. और
उन्होंने प्रभु रामचंद्र को श्रीलंका में जो योजनाबद्ध तरीके से जो आर्मी यानी कि जो लश्कर उपस्थित था उसकी पूरी योजना, पूरी व्यवस्था, पूरी जानकारी प्रभु रामचंद्र को दी। Ram was overwhelmed. प्रभु रामचंद्र भावना विभोर हो गए। He said, I have nothing I can give you in return. I'm living in the forest. क्योंकि मैं वन में निवास कर रहा हूँ, प्रभु रामचंद्र ने कहा कि आपकी सेवा के बदले में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। All I have is my heart. मेरे पास केवल मेरा हृदय है। Ram embraced Hanuman. प्रभु रामचंद्र ने हनुमान जी को आलिंगन दिया। That is Hanuman's love. ये हनुमान जी का प्रेम है, His seva. ये उनकी सेवा है। He wanted nothing for himself. हनुमान जी को स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहिए था। Unconditional service. बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के वो सेवा करते For the थे, pleasure of Ram. केवल राम जी के संतुष्टि के लिए। Where Ram became so indebted to that unconditional service, he gave him himself. That's all Hanuman would ever want. तो उनके निस्वार्थ सेवा से प्रभु रामचंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी को अर्पण किया। ये सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। Ram's pleasure was Hanuman's only purpose of living. प्रभु रामचंद्र की संतुष्टि यही हनुमान जी की सेवा का एकमात्र उद्देश्य था। It was his singular aspiration. उनका ये एकमात्र लक्ष्य था, उद्देश्य था अपने जीवन का, प्रभु रामचंद्र को संतुष्ट करें। And he understood what gave the most pleasure to Ram is giving pleasure to his devotee, Sita. उनको पता था कि अगर प्रभु रामचंद्र को संतुष्ट किया जाए तो उनकी सबसे श्रेष्ठ जो भक्त हैं सीता जी, उनको भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। Then we come to the 10th canto. और अब हम इसके बाद में दशम स्कंद में श्रीमद् We भागवत के प्रवेश find करते हैं। Srimad Bhagavatam is bringing us to Vrindavan. और ये स्कंद में हम श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं। Where Krishna and Balaram are the sons of Nanda, Yashoda, and Rohini. कृष्ण और बलराम नंद, यशोदा, रोहिणी के पुत्र हैं। The selfless, loving service of Yashoda Mai. निस्वार्थ प्रेममयी सेवा और प्रेम यशोदा माई का है। The selfless, loving service of the Gopas. और ग्वाल बालों का भी निस्वार्थ प्रेम भगवान के ऊपर है। And ultimately, the selfless, loving service of Gopis. और अंतिमतः गोपियों की निस्वार्थ प्रेम पूर्वक सेवा। Their love for Krishna was so unconditional. उनकी It didn't mean anything to them whether he's God or not God. They just loved him and wanted to please him. कृष्ण भगवान है कि नहीं है इनकी उनको बिल्कुल परवाह नहीं थी। निस्वार्थ भाव से वो भगवान की सेवा करना चाहते थे। And here in Barsana, the land of Sri Radha, और यहाँ पर बरसाने में ये राधा रानी की भूमि है। the culmination of the Bhagavatam, after developing this concept of unconditional, unmotivated love, is the love of Radha. और श्रीमद् भागवत के अनेक कहानियों से अहेतुकी और अप्रतिहता सेवा का वर्णन करने के बाद श्री राधा के प्रेम के बारे में वर्णन यहाँ पर हो रहा है। When Krishna was performing his Ras Leela, जब भगवान अपनी रासलीला रचा रहे थे, the gopis left everything for Krishna's pleasure. गोपियों ने अपना सब कुछ त्याग करके केवल कृष्ण के प्रेम के लिए समर्पित कर दिया, सब कुछ छोड़कर वहां पर प्रकट हो गई। The gopis appeared to be acting like regular ladies. गोपियों के व्यवहार से लग रहा था कि वो सामान्य औरतें हैं, But their hearts were in the most extraordinary, elevated state. लेकिन उनके हृदय एक अलौकिक स्थिति में थे। Sometimes ladies like to make themselves look beautiful. कभी कभी स्त्रियां अपने को सुंदर बनाने का प्रयास करती हैं। The gopis, when they would meet Krishna,
They would make themselves look, they would put mascaras and jewelry and make themselves look very beautiful. जब उनको कृष्ण को मिलना होता था तो गोपियां अपने आप को काजल लगाकर श्रृंगार करती थी, अलग अलग प्रकार के द्रव्य लगाकर अपने आप को सुशोभित करती थी, But they were not doing it to look beautiful लेकिन वो केवल सुंदर बनने के लिए ये सब नहीं कर रही थी, for themselves. अपने लिए नहीं कर रही थी, They were doing it to give Krishna pleasure. वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ये सब किया करती They थी। had no ego. उनको कोई अहंकार नहीं था, They were beautiful only for Krishna's pleasure. अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास केवल उनका कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए था। And because they were doing it for Krishna, Krishna wanted to please them, so he gave them supreme beauty. और क्योंकि वो केवल कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको परम सौंदर्य प्रदान किया। There's beautiful slokas which describe श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं जो इसका वर्णन करते हैं that compared to the ladies in the heavenly planets, even the most beautiful ladies in this world, Srila Prabhupada said, they look kind of like horses. श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इस विश्व की बहुत सुंदर युवतियां भी एक घोड़े की तरह दिखती है। But I'm sure that goes for men too. और मुझे विश्वास है कि ये बात पुरुषों के लिए भी लागू है। So we know how we're captivated by the opposite sex in this world, somebody who's very, very beautiful. आप सब जानते हैं कि कोई सुंदर व्यक्ति के प्रति कैसे लोग काम वासना से आसक्त हो जाते हैं। Compared to the heavenly beauties, like a horse. लेकिन जो स्वर्गीय सौंदर्य है वो भी एक घोड़े की तरह दिखता है। The ladies on the heavenly planets, their perspiration is more sweet than any perfume in this whole world. स्वर्गीय जो देवताओं की स्त्रियां हैं, उनका जो स्वेद है, जो उनका पसीना है, वो इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सुगंधित द्रव्य से भी श्रेष्ठ है। They never get old. वो कभी बूढ़ी नहीं होती है, They never get wrinkles. उनके चेहरे पे झर्रियां नहीं आती हैं, They're beautiful always. वो सदैव सुंदर रहती हैं। Compared to the ladies in Vaikuntha, the heavenly damsels are not even horses. लेकिन वैकुंठ की स्त्रियों के सामने जो स्वर्गीय देवताओं की स्त्रियां हैं, वो तो उनकी तुलना घोड़े से भी नहीं कर सकती। They are indescribably, unlimitedly, inconceivably beautiful. वो उनका वर्णन, वो अवर्णनीय तरीके से उनकी सुंदरता है। Compared to the queens of Dwarka, the ladies of Vaikuntha, their beauty is insignificant. और द्वारका की स्त्रियों के सामने वैकुंठ की स्त्रियों का जो सौंदर्य है वो भी बहुत तुच्छ है। And the ultimate beauty, the beauty of gopis, makes even the queens of Dwarka's beauty appear insignificant. और गोपियों के सौंदर्य के सामने द्वारका के स्त्रियों का सौंदर्य जो है वो भी तुच्छ नजर आता है। Why is the gopi so beautiful? गोपियां इतनी सुंदर क्यों हैं? It's not that they're trying to be beautiful ऐसा नहीं कि वो सुंदर बनने का प्रयास कर रही हैं for themselves. अपने स्वार्थ के लिए, They just want to be beautiful for Krishna's pleasure. वो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए सुंदर बनना चाहती हैं। And Krishna sees that their happiness is making him happy. और कृष्ण भगवान उनको संतुष्ट करने के प्रयास में जो गोपियां आनंद प्राप्त कर रही है, उस आनंद को वो देखते हैं। So to make them happy, he gives them more beauty to make him happy. तो उनको और प्रसन्न करने के लिए वो उनको और सौंदर्य देते हैं ताकि वो खुश हो जाएं, ताकि गोपियां उनको देखकर खुश हो जाएं। And then when he's more happy, he wants to give them more happiness, so he gives them more beauty. तो जब वो संतुष्ट हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो गोपियों को प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और फिर उसकी वजह से गोपियां और सुंदरता प्राप्त करते हैं। So their beauty is ever increasing. इस तरह से गोपियों का सौंदर्य हमेशा सदैव बढ़ते रहता है And Krishna's pleasures ever increase. और इस तरह से कृष्ण की संतुष्टि और आनंद भी बढ़ते रहता है And their pleasures ever और increase. उनका भी आनंद जो है बढ़ते And रहता है। neither Krishna or the gopis want any pleasure for themselves.
Krishna only wants to please gopis and gopis only want to please Krishna. और कृष्ण और गोपियां अपने आनंद की परवाह नहीं करते। कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां संतुष्ट हो और गोपियां चाहते हैं भगवान संतुष्ट हो। And when they make garlands for Krishna, जब वो भगवान के लिए फूल मालाएं बनाते हैं, they want the most beautiful fragrant garland. बहुत सुंदर सुगंधी पुष्पों को वो चुनना चाहते हैं। So what kind of flowers grow in Vrindavan just to fulfill their desires? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके पास किस प्रकार के फूल यहाँ वृंदावन में उपलब्ध हैं? Kusum Sarovar. कुसुम सरोवर, Radharani, that's the place Srimati Radharani Pushpavan. She's collecting flowers for Krishna. कुसुम सरोवर जो वहाँ जो पुष्प वन में है, वहाँ पर राधा रानी कृष्ण भगवान के आनंद के लिए फूल बिनती हैं। And those flowers are manifestations of her desire to please Krishna. वो जो फूल है वो राधा रानी को भगवान को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसका परिणाम है। Chintamani Dham. वो चिंतामणि धाम है। Can you imagine what those flowers are like? They are manifestations of Sri Radha's desire to please Krishna. क्या हम उस फूलों का सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि वो राधा रानी के हृदय के प्रेम का परिणाम है, उसका प्रतीक है। Every flower is unlimitedly fragrant and soft and beautiful, and in its unlimitedness, it's ever increasing in its beauty, in its softness, and its fragrance. हर एक फूल अनंत स्तर पर अनंत दर्जे से सुगंधी है और हर एक फूल अपने तरफ से अनंत। Expansion is Dhanvantari, who makes everyone healthy. उन्हीं का अवतार तो है धन्वंतरी, जो सबको बीमारी से ठीक कर देता है। But he just to increase the love of his devotees, he gets sick. लेकिन केवल अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं। And the gopis are praying and willing to go to hell for eternity. और गोपियां In exchange of making Krishna feel गोपियां better. चिरंतन काल के लिए नरक यातना भोगने को तैयार है, अगर उसके बदले में कृष्ण भगवान को कुछ देर के लिए क्यों न हो आराम प्राप्त हो। That kind of love is inconceivable. इस प्रकार का प्रेम जो है वो अनाकलनीय है, अचिंत्य है। And during Ras Leela, when Krishna was experiencing their love, Krishna told them, I cannot repay you for your devotion, even with everything I am and all I have in an entire lifetime of Brahma. रासलीला में जब गोपियों के द्वारा भगवान आनंद को प्राप्त कर रहे थे, सेवा प्राप्त कर रहे थे, तो उन्होंने गोपियों को कहा कि जो भी आप मेरे लिए प्रेम पूर्ण सेवा कर रही है, उसके बदले में मेरे पास जो भी कुछ है वो देने पर भी मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। The Bhagavad Gita, Krishna states a tattva. भगवद गीता में भगवान एक तत्व को समझाते हैं, Bhakti tattva. Ye yatamam prapadyante tamstataiva bhujamya. That as you surrender me, I reciprocate accordingly. कहते हैं जैसे आप मेरी ओर शरणागत होते हो वैसे मैं आपको प्रतिसाद देते रहता हूँ। But before the gopis, Krishna admits, I can't fulfill that verse. और वही कृष्ण जो उस श्लोक को कहते हैं, भगवान गोपियों को कहते हैं कि मैं इस श्लोक में जो कहा गया है वैसे मैं आपके लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ, उस श्लोक को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। The power, the purity, the sweetness of your love is so great. आपके प्रेम की शक्ति इतनी महान है, I cannot reciprocate accordingly. उसके अनुसार मैं आपके साथ में प्रतिसाद नहीं दे सकता। I am in debt to you forever. मैं चिरंतन काल के लिए आपका ऋणी हूँ। That was the power of Krishna, of the gopis' love. ये गोपियों के प्रेम की शक्ति थी। And beyond all is Sri Radha's love. और ये सबके परे जाकर श्रीमती राधा रानी है। Krishna thinks when he sees a reflection of himself in a jeweled pillar, जब वो अपने आप को एक पारदर्शी स्तंभ में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सोचते हैं
even he becomes completely enchanted by his own beauty. अपने ही सौंदर्य को देखकर वो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं. But then he's thinking, what I'm seeing, but what is it that Radharani feels when she sees me? That love I cannot understand. ये तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे सौंदर्य को देखकर राधा रानी को जो आनंद प्राप्त होता है, मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता. I want to taste that love. वो प्रेम राधा रानी का मैं उसका स्वाद चखना And चाहता I हूँ. want to give that love to everyone, और वही प्रेम मैं खुद चखने के बाद में सब लोगों को बांटना चाहता हूँ. whoever will accept it. जो भी उसको स्वीकार करने को तैयार है, उनको मैं बांट Radha दूंगा. bhava duti suvalitam nomi Krishna swarupam. So he became Sri Chaitanya Mahaprabhu. और वो स्वयं इस भाव को चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन गए. Krishna, with the Mahabhav of Radha in her heart, in his heart. वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का महाभाव अपने हृदय में धारण करके आए हुए And हैं. with the beauty of the complexion of Sri Radhika, और राधा रानी का सौंदर्य की जो कांति है, उसको उन्होंने धारण किया है. to taste the sweetness of Radha's love and to share it. राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करके सबको वो आस्वादन वितरित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं. And how is he sharing it? और वो कैसे उसको वितरण कर रहे हैं? Through the path of bhakti. भक्ति के मार्ग से भगवान ये कार्य कर रहे हैं. By chanting the holy names through kirtan, sankirtan, this love awakens within our heart. भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करके ये हृदय का प्रेम जो है वो जागृत हो सकता है. Anandam buddhivardhanam pratipatam purnamrita svadanam. By this chanting, our heart is cleansed, and ultimately the ecstasy that we're all seeking, the ecstasy of unmotivated, uninterrupted, loving service to the Supreme, is realized. तो इस नाम संकीर्तन के माध्यम से हमारे हृदय की शुद्धि हो सकती है, और जो अहेतुकी अप्रतिहता प्रेम जो हम सब चाहते हैं, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, वो हमारे हृदय में जागृत हो You सकता है. see, Srimad Bhagavatam culminates in Sri Vrindavan Dham with Radha's love for Krishna. श्रीमद् भागवत की जो यात्रा है वो श्री वृंदावन में आकर रुकती है, यहाँ पर आके समाप्त होती है, जहाँ पर कृष्ण और राधा का प्रेम प्रकट होता है. Sri Chaitanya Mahaprabhu begins where Srimad Bhagavatam concludes, where it culminates. और श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ भागवत का अंत होता है, वहीं से अपनी लीलाओं का शुरुआत कर देते हैं. Where Krishna is tasting Sri Radha's love and distributing it to the people of the world. क्योंकि वो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और उस प्रेम को विश्व में बांट रहे हैं. Srimad Bhagavatam's last verse is by bowing down before the Lord and chanting his holy names, one becomes free of all sins and ultimately awakens prema bhakti. Srimad Bhagavatam, the last verse, is by offering our pranams to the Supreme Lord with heartfelt devotion and chanting his holy names, we can achieve the highest perfection. श्रीमद् भागवतम का जो आखिरी श्लोक है उसमें कहा गया है कि अगर हम भगवान को प्रणाम करते हैं और उनको अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं. वही जीवन का लक्ष्य है. And Sri Chaitanya Mahaprabhu comes, Radharani is distributing those holy names and teaching by his own example how to chant. चैतन्य महाप्रभु के आने का मतलब है कि स्वयं राधा रानी उनके रूप में आकर कैसे प्रेम और भक्ति की जाती है, उसका उदाहरण सबके लिए दिखा रही है. And his message, उनका संदेश, Gopi Bharatur Pudakamalayor Adas 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 Anu Das. To be the servant of the servant of the servant of the servant of the Lord of Gopis. उनका क्या संदेश है कि गोपियों के जो नाथ है, उनके दासों के दासों का दास, अनुदास हमको बनना है. I tell the story often, but I like to tell it. ये कहानी मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन दोबारा मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ. When I became a devotee, जब मैं भक्त बना,
And I learned all these things. और मैं ये सीखा सब कुछ। I wrote a letter to my mother and father, तो मेरे माता पिता को मैंने एक खत लिखा and I signed it, your servant, and then gave my name. और उन्होंने इस खत के अंत में लिखा कि आपका दास। And they wrote back and say, why are you calling yourself our servant? You have an education, you are a person with, integrity. Why are you calling yourself a तो उन्होंने उसका servant? जवाब दिया कि अरे आप अपने खत में अपने आप को वो हमारा सेवक क्यों मानते हैं? आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे विद्या प्राप्त कर चुके हो और वो आपको मुझे सेवक के रूप में क्यों मान रहे हो? They said, you should not demean yourself in this way. वो आप अपने आप को इतना नीचा नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से लिखित लेखन करके। So I replied to that letter. तो मैंने उनके जवाब का मैंने जवाब दिया। I just told how I am and what I'm doing. मैं बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। And I signed it, the servant of your servants. और अगले खत में मैंने लिखा कि मैं आपके दासों का दास। पहले लिखा था आपका दास, इसमें लिखा आपके दासों का दास। And they never brought up the subject again. और दोबारा उन्होंने कभी भी इस विषय पर चर्चा नहीं की। Because they knew if they did, then I would become the servant of the servant of the servant of the क्योंकि उनको डर servant. था कि अगले पत्र में लिखेंगे आपके दासों का दास। But this is the aspiration Sri Chaitanya Mahaprabhu taught us. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यही अभिलाषा हम सबके लिए प्रकट की है। Shushushosha datanasya vasudeva kataruchi syanmaha sevaya viprapunya tirthanase. If we want to develop a real taste for hearing about Krishna, if we want to develop a true, genuine taste to chant the holy names, we must serve the great souls. अगर आपको भगवान की कथा के विषय में रुचि उत्पन्न करना है, अगर आपको भगवान के नाम के जप के विषय में अभिरुचि उत्पन्न करनी है, तो हमें महान आत्माओं की महात्माओं की सेवा करना आवश्यक है। But what does it mean to serve the great souls? लेकिन महात्माओं की सेवा का अर्थ क्या है? The great souls are pleased when we serve everyone. और महात्माओं को तब संतुष्टि प्राप्त होती है जब हम सब लोगों की सेवा करते हैं, When we are genuinely in the spirit of servant of the servant. जब हम हृदय से अनन्य सेवा भाव में रहते हैं। So those of you who are part of this wonderful seva of serving the Brijavasis, this is the spirit. तो आप सबके लिए जो इस बरसाना कैंप के सेवक हो, स्वयं सेवक हो, ये भाव जो है सेवा का वो आपको समझना जरूरी है। This is not just an ordinary exercise of philanthropy. ये कोई सामान्य समाज सेवा का कार्य नहीं है। This is the heart of bhakti. ये एक भक्तिपूर्ण हृदय का अपने आप को व्यक्त करने का तरीका है। The Brijavasis, the residents of Vrindavan. ब्रजवासी जो है वो वृंदावन के निवासी हैं। Bhakti Vinod Thakur explained where there is a great need, there's a great opportunity to serve. भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि जहाँ पर जरूरत होती है हमारे लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा मौका अवसर प्राप्त होता है। To receive the blessings of these simple Brijavasis. ये बहुत सामान्य सीधे साधे हृदय के जो ब्रजवासी है उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। I was discussing earlier one Brijavasi lady. She was telling me that her only prayer in life was she could have some vision so that she could bake rotis to offer to Sri Radha. कुछ देर पहले मैं ये चर्चा कर रहा था कि एक ब्रजवासी माता जो हमारे कैंप में अपनी आंखों का ऑपरेशन करने आई थी, वो कह रही थी कि मेरे जीवन में केवल एक ही अभिलाषा है कि मेरी एक आंख की दृष्टि वापस आ जाए और मैं राधा रानी को अपने हाथ से रोटी बनाकर उसका भोग लगाऊं। How many swamis will even be able to pray like that? ऐसे कितने स्वामी हैं जो इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं? Very exalted. बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है ये, But that is Vrindavan. और यही वृंदावन है। The exalted nature of Vrindavan is in its total simplicity. जो श्रेष्ठ दर्जा है वृंदावन का वो उसके सादगी में छुपा हुआ है। In its simple, unpretentious,
unsophisticated will to unconditionally please Radha Govinda. और अपने हृदय से, अपने हृदय की सादगी के भाव से भगवान के प्रति अनन्य भाव से सेवा करना, यही ब्रज का स्थायी भाव है। Srila Prabhupada explains when Krishna would play his flute, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे, the calves that were drinking from their mother's udders, जो गाय के बछड़े अपनी माताओं के स्तन से दुग्ध पीते थे, they would raise their ears वो अपने कानों को ऊपर करते थे and drink the nectar of Krishna's flute. और कृष्ण भगवान के मुरली का जो अमृत है उसका पान करते थे, And that nectar reached their hearts, और वो अमृत उनके हृदय तक पहुंचता था, and they just were under their mother with their mouth around the udder, और माता के स्तनों के नीचे अपने मुख को ऊपर उठाए हुए, उनका स्तन अपने मुख में लिए हुए, they enter into the samadhi of prema. और प्रेम समाधि की अवस्था में अपने आप को प्राप्त करते थे। They stopped drinking. वो दूध पीना बंद कर देते थे, Tears flowed from their eyes, उनके आंखों से बछड़ों के अश्रु बहा करते थे, and they embraced Krishna heart to heart. और हृदय में वो भगवान का आलिंगन किया करते थे, And Krishna embraced them heart to heart. और कृष्ण उनका हृदय से आलिंगन करते थे। Total absorption in the ecstasy of love. प्रेम के अतिरेकी भाव में, प्रेम के श्रेष्ठ भाव में, विकारपूर्ण भाव में वो अपने आप को मग्न पाया करते थे। These little calves, they didn't know a lot of slokas or anything. ये जो छोटे छोटे बछड़े थे, उनको कोई बहुत वेदों के श्लोकों का ज्ञान नहीं था, They didn't know how to do pujas. उनको पूजा करना कैसे पता नहीं था, They weren't giving big donations. वो बड़ा दान पुण्य नहीं करते थे, They didn't have thousands of disciples. वो उनके पास हजारों शिष्य भी नहीं थे, They just loved Krishna, वो केवल भगवान पर प्रेम करते थे, heart to heart. हृदय से भगवान पर प्रेम And करते थे, Krishna loved them heart to heart. और हृदय से भगवान भी उन पर प्रेम करते थे। That is the simplicity of the bhav, the love of Vrindavan. ये वृंदावन के भाव की सादगी है। So this is a beautiful opportunity तो ये बहुत ही सुंदर एक अवसर है हमारे लिए, to offer seva to the Brijvasis. ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर, Not just something unsubstantial, but something that really pleases them, that really makes a difference in their life. ऐसा नहीं कि छोटी सी सेवा है, लेकिन इस सेवा के माध्यम से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। You see, the body is a facility by which we can express our will to serve the soul. हमारा शरीर जो है ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से भगवान की सेवा करने की इच्छा हम व्यक्त कर सकते हैं। When our seva is genuinely to please this person for the pleasure of Krishna, by really being an instrument of Krishna's compassion, इनकी सेवा करने का अर्थ है कि भगवान की जो करुणा है उसका प्रतिनिधि बन के हमको उनकी सेवा करनी है, then Krishna is pleased. और इस तरह से कृष्ण भगवान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। And we have beautiful kirtan throughout the day. और पूर्ण दिवस यहाँ पर सुंदर कीर्तन का आनंद होता है, आनंद मिलता है, To keep everyone floating in this beautiful river of bhakti. तो इस भक्ति के सुंदर नदी में सबको तैरते रहने का मौका मिलता है। And as far as I know, nobody gets paid. और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस सेवा के बदले में किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, Everyone is doing it from their heart. सब लोग अपने हृदय से इस सेवा को अर्पण करते हैं। Beautiful thing. My special gratitude to His Grace Vishwarup Prabhu. Translate. Exactly as I said it. और मेरा Do not विशेष जो be a translator, not an editor. मेरी ये विशेष कृतज्ञता विश्वरूप दास के प्रति है। Did he say it exactly?
How could you say that? On your order, Maharaj, I can say. He just showed his unconditional devotion. He's willing to humiliate himself and go to hell just to follow an order. Say it. वो इस प्रकार का आदेश पालन करके अपने आप की निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आदेश पालन करेंगे. I tried my best, Maharaj. Vishwarup Prabhu is an honorary Brijavasi. Hare Krishna. All the Brijavasis love him so much. सब ब्रजवासी इन पर प्रेम करते हैं. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. Hare Krishna.